بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چوتھے روزے کی مناسبت سے چوتھے پارے کے احکامات اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن مقدس کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، چوتھا پارہ جس میں سورۃ آل عمران کی کچھ آیات طیبات ہیں اور پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب تم اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور جس پہ خرچ کر رہے ہو اس کے لیے وہ چیز زیادہ نافع ہوگی، اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے چل کر یہودیوں کا ایک اعتراض تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا گوشت بھی کھاتے تھے اور اس کا دودھ بھی پیتے تھے۔ یہودیوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے، تو لہٰذا اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ملت ابراہیمی پہ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ منع کیا ہے، ذرا تم اپنی تورات تو میرے پاس لے کے آؤ اور پھر اس میں پڑھ کے بتاؤ کہ اللہ نے کہاں پہ اس کا حکم دیا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ آیت طیبہ اس وقت نازل ہوئی اور ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت خود اپنے اوپر منع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے، ملت ابراہیمی کے لیے حلال بنایا ہے، تو اس کی حرمت کا کوئی حکم نہ تورات میں ہے نہ کسی اور کتاب میں ہے، یہ حلال ہے۔ تو گویا یہ ان کی جو افتراء بازی تھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ رب العزت نے یہ آیات طیبات نازل فرمائی ہیں۔ ناظرین، اس سے آگے چل کر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ کا گھر جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کی فرضیت کا حکم بھی سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن جو ہے یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کی رسی ہے، حضور کی ذات سے متمسک ہو جاؤ، حضور کی اطاعت اور پیروی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کریم تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا اگر تم اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا لو گے۔ اس سے اگلی آیت طیبہ میں ملت اسلامیہ کی منصبی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
वयनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक ऐसी उम्मत होनी चाहिए कि जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और लोगों को बुराई से मना करें। बहैसियत मुसलमान हर फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में वो आमिर और नाही का फ़रीज़ा सर अंजाम दे, लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। और आज अगर हम इस ज़िम्मेदारी को संभाल लेते हैं, हम अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास कर लेते हैं, तो हमारा मुआशरा बुराइयों से पाक हो सकता है, नेकी आम हो सकती है, हर तरफ नेकी ही नेकी होगी। अहबाब ज़ी वक़ार, इससे आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और हुक्म इसी हवाले से, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अज़मत और फ़जीलत को बयान फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए तुम्हें ज़ाहिर किया गया है, इसलिए भेजा गया है, तअमुरूना बिलमारूफ़ी व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। आज एक मुसलमान ज़रा अपना जायज़ा ले, बहैसियत मुसलमान वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से मना करता है। आज अगर हम फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझ ले, हम अपने मुआशरे को हर किस्म की बुराई से पाक कर सकते हैं, हम नेकी को आम कर सकते हैं। तो अहबाब ज़ी वक़ार, ये आयात तय्यबात अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के लिए मशअल राह बनाकर भेजी हैं, हिदायत का सरचश्मा बनाकर भेजी हैं। आगे चलकर ग़ज़वा बदर के हवाल का ज़िक्र है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की कलील तादाद को उस ज़माने की सुपर पावर पे कामयाबी और फ़तह अता फ़रमाई। उस ज़माने की सुपर पावर को किस तरह मुसलमानों ने नाकों चने चबवाए और वो जो गुरूर तकब्बुर लेके आए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस सब को मलिया मेट कर दिया। मुसलमानों को ऐसी कामयाब फ़तह अता फ़रमाई, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी से नवाजा कि मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और तारीख़ आलम में कोई शायद ऐसी मिसाल हो कि इतनी कलील तादाद में एक जमात ने अपने से कितनी बड़ी जमात को ऐसी शिकस्त फाश दी हो। इससे आगे चलकर ग़ज़वा उहद के हवाल का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया और शुहदाए उहद की फ़जीलत और उनकी अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने उनको जहाँ रखा है वो खुश हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंद दराजात और बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया है। ख़बरदार, अगर किसी ने उनको मुर्दा कहना तो दूर की बात है, तुम उनको मुर्दा गुमान भी नहीं कर सकते, तुम अपने वहमो गुमान में भी उनके बारे में मुर्दा सोच भी नहीं सकते, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, इससे आगे चौथे पारे में सूरतुन्निसा है। सूरतुन्निसा मदनी सूरतों में से है। सूरह बकरा के बाद ये सबसे तवील सूरा है। मौजूदा तरतीब के एतबार से कुरान पाक में इसका चौथा नंबर है। नुज़ूल के एतबार से इसका 92 नंबर है। ये सूरा नाजिल होने के एतबार से 92 नंबर पे आती है और मौजूदा तरतीब के एतबार से इसका नंबर चौथा है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के अहकामात बयान फरमाए हैं। यतीमों के हुकूक़ की अदायगी का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इसी सूरह मुबारका में दिया है। तअद्दुद अज़दवाज की मशरूत इजाज़त भी इसी सूरह मुबारका को मिली है। वरासत के अहकाम तफसील से सूरह मुबारका में नाजिल हुए। बेहयाई के ख़ात्मे के इब्तदाई अहकाम भी इसी सूरह मुबारका में हैं। मुहर्रमात निकाह का बयान भी इसी सूरह मुबारका में है। अमाल सालिहा की तलकीन, मुसलमानों का माल नाहक तरीके से खाना और मुसलमानों को कत्ल करने के ममानिअत से मुतअल्लिक़ हुकूक़ भी इसी सूरह मुबारका में है। हमारी आइली और मुआशरती ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ अहकाम, वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, बुख़ल की मज़म्मत, यहूद की शरारतें और जिहाद की तलकीन से मुतअल्लिक़ जो अहकाम हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में नाजिल फरमाए हैं। इस सूरह मुबारका की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि ए मुसलमानों, अपने रब से डरो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है
उसने एक मर्द और एक औरत से तुम्हारी तख्लीक की है। आगे चल कर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी 11 और 12 नंबर आयात तय्यबात में बड़ी तफसील के साथ वरासत के अहकाम नाजिल फरमाए हैं कि जिसको आज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी औलाद में बेटे और बेटियां हों तो हर बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ़ एक ही बेटा हो तो बाकी जिन वारसों का हिस्सा शरीयत में मुकर्रर किया गया है उनको देने के बाद बाकी सब का सब उसके बेटे को मिलेगा। एक से ज़ायद बेटे हों तो उन सब में बराबर तकसीम किया जाएगा। अगर किसी की वारस सिर्फ़ एक बेटी हो तो उसे बकिया तरके का आधा हिस्सा मिलेगा। और बाबे वकार विरासत से मुताल्लिक़ जितने हुकूक़ हैं आलमोस्ट वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत तय्यबा में तफसील से बयान फरमाए हैं। तो ये बात याद रहे कि मैयत के इंतकाल के बाद उसके वरासत में से, उसके विरसे में से सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी। उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई कर्ज़ है तो वो अदा किया जाएगा। और तीसरे नंबर पे अगर उसने वसीयत की है किसी ऐसे शख्स के हक़ में कि जिसको विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा, यानी जिसका हिस्सा विरासत में मुकर्रर नहीं किया गया, उसके हक़ में अगर उसने कोई वसीयत की है 1/3 तक उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। ये 3 काम करने के बाद फिर उसके वरसा में उसकी विरासत की तकसीम की जाएगी। इससे आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे की आखिरी आयात तय्यबात में मुहर्रमात अब्दिया का ज़िक्र किया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम। तो ये 3 तरह के रिश्ते हैं कि एक मर्द के लिए जो ख़वातीन हराम हैं या तो उसके नसब के एतबार से या रज़ात के एतबार से या मुसाहरत के एतबार से अगर कहीं निकाह कर लेता है तो निकाह की वजह से कई रिश्ते उसके लिए हराम हो जाते हैं। तो जो जो मुहर्रमात अब्दिया हैं उन सब का तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे की आखिरी आयत में ज़िक्र किया है। तो नाज़रीन, ये थे आज के पारा नंबर 4 के अहकाम। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।